जैसे कि आपने देखा MCHI क्रेडा इन नवी मुंबई एंड रायगढ़ ये एग्जीबिशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा है. There are more than 100 developers who have participated and with varieties of projects to be displayed. So all you have to do is visit, explore and own your dream house. So don't wait, come at this exhibition and experience the property display. And we would like to know maximum developer in our area. With the help of all the developers, generally we increase our sales and all. So we will not take much time, we'll start. I would like to request our convener, Mr. Madhu Patil, come on dais over here. Mr. Manoj Awasthi, co-convener of MCHI Exhibition 2015. Our president, Mr. Arvind Goyal, I would request come over here. Mr. Vikas Mamre, president of MCHI Raigad. This exhibition, almost 100 developers have participated in this exhibition. One main thing is that this exhibition is live 365 days. If you are visited our website www.mchimr.com, you will get all the stalls live and the property is displayed. You can see every day or in a year at any time. You can see the participants who have participated for the exhibition and their property displayed, and you can sell from it and you can interact them for the developers. Thank you. बिल्डर और ब्रोकर ये दोनों का एक पार्टनरशिप का जैसा है. जैसे बिल्डर को अपना प्रोजेक्ट को मार्केट करने के लिए एक ब्रोकर, सही ब्रोकर का होना बहुत जरूरी है. तो अभी हमारा ये एग्जीबिशन के मीडिया में हमने ये डिसाइड किया कि एक ब्रोकर का मीट रखा जाए जिसमें हर एक ब्रोकर आके अपने डेवलपर जो जिन्होंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट एग्जिबिट की हैं वो उनसे मिल सके और अपने व्यूज शेयर कर सकें. हमें इस बात की खुशी हो रही है कि सारे एग्जिबिटर्स आपने रूबरू सुना कि सबको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. अच्छा रिस्पांस का मतलब है कि हम जो मंदी सोच रहे हैं, वो मंदी का जो एक स्पार्क हुआ है, वो स्पार्क को आपकी और हमारी मिली-जुली रिस्पांसिबिलिटी है. वो स्पार्क को हम एक मशाक बना के अगर हम लोग सब पॉजिटिव सेंटिमेंट्स सबके पूरे मार्केट में उसको अगर निर्माण करेंगे तो जरूर ये मंदी एकदम बुरी तरह से भाग जाएगी. इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग ये पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्सेस मिले हैं सारे एग्जीबिटर्स को, जो बहुत सारे लोगों के फ्लैट्स भी काफी अच्छे पैमाने पर बुक हुए हैं. सेकेंड थिंग, अफोर्डेबल सेक्टर को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. तो हम इस पार्क को बहुत अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करिए. और ये जो एग्जीबिशन जो है ये मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट बनेगा ये मंदी के दौर में. मैं ये चाहता हूँ कि ये टर्निंग पॉइंट बने. थैंक यू. Welcome you all. It's a pleasure to see you in a big gathering. Myself Manoj Rao and a partner in Shivam Builders. I recently completed project in Chembur and starting a new project in Panvel, Sainagar, and it's a 2,000 square meter property. And we are planning to start before monsoon. And we are negotiating one more project in Chembur. So at earliest we will inform you. Then accordingly we will decide the rates and all. And we will inform you at earliest. Thank you. Good afternoon friends, welcome you all. I am Vaibhav Agarwal from Siddhivinayak Homes. My projects are going on in Ulve, Panvel and Taloja. In Ulve, it's a 2 and 3 BHK premium project. We have recently completed a show flat. I would request everyone to visit it. It's a very premium project and a premium location opposite the proposed Vaman-Dongri railway station. And the other project is in Panvel, Alaspe, which is a low-cost housing project, 1 and 2 BHK. So I request you to visit our UA property and you can have the relation for those. Thank you. Good afternoon friends, my name is Dinesh Doshi. I am representing my company called Doshi Realty. हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं वो है अफोर्डेबल और बजट होम्स है which are on the periphery of outskirts of New Bombay at Karjat and Neera, which is about 50 meters
got ready possession as well as under construction. So anybody who is looking forward to, doing marketing projects in that area, please get in touch. Thank you. Good afternoon, friends. I'm Priya Gurnani, Managing Director, Nuraj Group. I extend a hearty welcome to all of you present here. We have several ongoing projects in New Bombay. We have a luxury building at Kobar Kerala. We have a complex of 32 buildings in Panvel, which we are almost completing. We have an upcoming budget housing at Khopoli, where we have a wide range of apartments ranging from 1 kitchen up to 2 BHK. We are also constructing a beautiful complex at Nagpur, which is an 18-storied structure spread over 10 lakh square feet. It is in the center of Mihan, which is where the Make in India, Make in Maharashtra, of our government is focused. I request you to please visit our stall at BB1, BB2 for further inquiries. Thank you. मेरे बारे में यही बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग पनवेल में वापस एक टाउनशिप लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम साई वर्ल्ड सिटी है। हम आप लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहीं से हम इस मंच से आप लोगों को इनवाइट करता हूँ कि 25-26 को वहाँ हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है, कार्निवल फेस्टिवल 2 दिन का, मॉर्निंग 10 to इवनिंग 10 o'clock तक। सो आई इनवाइट एवरीबॉडी, ऑल स्टेट एजेंट्स, और आप अपने सब कलीग लोगों को भी बोलिएगा। मेरी टीम हम ट्राई करेंगे हम सबको इन्विटेशन पहुंचा सकें, लेकिन पर्सनली आई एम इनवाइटिंग फ्रॉम हियर। उसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट्स खारगर में, तलोजा में, उलवे में, और बहुत जल्द हमारी एक टाउनशिप खारगर में स्टार्ट हो रही है, जो तकरीबन 2200 फ्लैट की है। दोस्तों, नवी मुंबई का विकास सिडको का सिर्फ नाम होता है, लेकिन सच देखा जाए तो हम सब बिल्डर और आप सब एजेंट्स 80% विकास इन्होंने किया हुआ है। लेकिन हमारी हालत देखो कि ना हम सिडको के पास रजिस्टर्ड है, ना हमारा कोई ऑथराइजेशन गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। इसके लिए हमारा MCHI और आप सब मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं नवी मुंबई के विकास के लिए, वो बहुत बढ़िया है। और एजेंट्स, बिल्डर्स और अफोर्डेबल हाउसिंग, ये तीनों चीज को एक्यूमुलेट करने के लिए हमने रिसर्च किया। 2 इंटरनेशनल अवार्ड जिसमें मिले। proposesociety.com करके हमने एक वेबसाइट का विकास किया हुआ है, जिससे अबाउट 20% लेस कॉस्ट में हम लोगों को घर दे सकते हैं। हमारा आने वाले 6 महीने में इसका लॉन्चिंग में करने वाला हूं। आप ऑथराइज एजेंट उसका हो सकते हैं, आपको ऑनलाइन उसका कमीशन मिलेगा, और ये जो डिमांड है हाउसिंग की, वो उसमें रजिस्टर की जाएगी, और उसके मुताबिक हमारे बिल्डर और सब भाई मिलकर उसका सप्लाई करेंगे, डिमांड के मुताबिक सप्लाई। वो कंसेप्ट हमने proposesociety.com में की है, और 3 कंपनियों से मेरा काम चलता है। अब इसमें ग्रुप ऑफ कंपनीज में से शिवकमल डेवलपर्स, भवानी विकास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और श्री निमली डेवलपर्स। मेरे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स काबू के एरिया में है। अभी तलोजा में टाउनशिप के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो कामोडे के जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी कंप्लीशन में है, तो उसमें अगर सेल में आप भी हमारा मददगार साबित होंगे, ऐसा मुझे गारंटी है। और ज़्यादा समय नहीं होने के कारण बहुत कुछ बोलना है आपके साथ, लेकिन नेक्स्ट वीक हम रखेंगे तब बात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं इस जगह से लगभग 30 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। द फर्स्ट एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड 1984। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द एग्जीबिशन कमेटी, जिन्होंने इतने शॉर्ट पीरियड में और बहुत सक्सेसफुली, बहुत इन्वॉल्वमेंट होके आपको और बिल्डर्स को और स्टेट एजेंट्स को और बायर्स को एक छत के नीचे खड़ा किया है। दोस्तों, मैं कहूँगा तुमके ये जोरदार तालियां बजाइए। दोस्तों, नई मुंबई का डेवलपमेंट मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन एक मोटिवेशन था, एक जुनून था, एक सपना था, और आप देखेंगे वो सपने साकार हुए हैं। आज भी हम नई मुंबई वाले अपने काउंटर पार्ट से कहीं ज्यादा आगे हैं। आप सब सोच रहे होंगे और सुन रहे होंगे कि नए DP प्लान में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं।
एक एक साल तक प्लान अप्रूव नहीं होता है, ठंडे बस्ते में लोगों ने डाल दिए हैं। छोटी छोटी बातों के ऊपर रोक लग जाती है। कम से कम इतना तो है कि नई मुंबई में आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स करने में झेलनी नहीं पड़ती है। टाइटल क्लियर है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है वो मैंने भी रखी थी सीएम साहब के आगे कि न्यू सिडको के जो डेवलपमेंटल रूल्स है और कॉर्पोरेशन के हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है दोस्तों। वो चीजें हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन अब वक्त ऐसा है कि आप सब लोगों का सहयोग और कॉर्पोरेशन के साथ साथ जो एक यूनिटी है वो बहुत जरूरी है और उस सबको मिलकर ही हम लोग नई मुंबई को आगे बढ़ाना चाहिए। नई मुंबई जैसे मोदी जी ने स्मार्ट सिटी कहा है, वो स्मार्ट सिटी तो बनेंगे, लेकिन नई मुंबई तो स्मार्ट सिटी है, वो अभी भी आज भी स्मार्ट सिटी है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। Basically, I am here right now to promote an upcoming area in पनवेल। पनवेल में एयरपोर्ट के करीब एक नया एरिया डेवलप हुआ है जिसको अपर पनवेल के नाम से आज घोषित किया गया है। अपर पनवेल में काफी आप लोग 6-8 बिल्डर्स जो है मिलके सब पूरा एरिया को उठा है इन द सेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट को प्रेस करे। पनवेल म्यूनिसिपल काउंसिल के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की है वहाँ पर अच्छा से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और वो सेगमेंट ऐसा है कि जहाँ पर 20 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक ये सब फ्लैट्स अवेलेबल है। So I think like I am requesting everybody to visit our stall Upper Pavilion. Thank you. Good afternoon everybody. This is Rajesh Prajapati. Friends, we welcome all of you here on behalf of MCHI Execution Committee. It's a very good step that the committee members have taken this morning to invite all of you here. दोस्तों, आप हमारे पार्टनर्स इन सर्विस हैं। We are all nowadays calling you channel partners, and it's correct because that is what the name which is correct for all of us. Channel partners are as much required, उतने ही जरूरी हैं जितने कि और लोग जरूरी हैं हमारे बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए। और ये इंडस्ट्री जो है इट्स अ वेरी ग्लोबल इंडस्ट्री। कुछ कटिंग्स, कुछ मीडिया की बातें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से सिर्फ जो प्रॉब्लम्स हैं वही हाईलाइट होते हैं, और अगर मीडिया को अपने आप को चलाना है तो प्रॉब्लम्स के माध्यम से ही चला सकते हैं। When they highlight issues which are wrong, that is the way good news is no news. So that is why all the bad news comes, and very few people may be doing something hanky-panky, but most of the builders, I believe, are doing a fantastic job. ये बहुत टाइम हुआ है कि हमारे जो कस्टमर लोग हैं जो जाके फ्लैट दिखाते हैं बिल्डर लोग के, तो उनके जो 2% जो ब्रोकरेज है वो बिल्डर लोग नहीं देते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट हमारे पास आई है, और जब भी इनसे बात करेंगे तो कस्टमर से लोग डायरेक्ट डीलिंग कर देते हैं और हमारा ब्रोकरेज देने से इनकार करते हैं। हम चाहते हैं कि कमेटी सेल बनाई जाए जिससे इसका निवारण हो। हमारा एक बोर्ड ऑफ कंडक्ट है MCHI का, जहाँ भी कोई किसी का अगर हमारे लोगों में हमारा ही मेंबर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, वी कैन रिजॉल्व, वी कैन सी एंड वी कैन रिजॉल्व इट। अगर किसी का बाहर से कोई ब्रोकर का एजेंट या एक्सेस कंसल्टेंट किसी का प्रॉब्लम है, वी कैन ऑल्सो रिजॉल्व in front of sitting everybody with customer, broker and builder, we can resolve it. But जैसा हमने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है वैसा भी आपका एसोसिएशन में एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये हमारा सुझाव है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 2-3 चीजें हैं, सजेशंस भी है और आपसे जरा राय भी लेना था। फर्स्ट थिंग, जैसे ब्रोकर्स को मार्केटिंग सपोर्ट लगते हैं, ब्रोशर्स वगैरह लगते हैं, तो आप अगर जैसे आज यहाँ पर आप ब्रोशर्स बात है वही सारे सपोर्ट अगर आप ब्रोकर्स के ऑफिस तक पहुँचाने की कोशिश करें तो आपका प्रोडक्ट जल्द से जल्द बिकने के लिए कामयाबी हो सकती है। सेकेंड थिंग, जो ब्लैक का पोर्शन है जो आप सब लोग जानते हैं कि
we cannot discuss all these things over here. Don't use this word. Please, Okay. I would only cash request. motion like that. Okay. मैक्सिमम अगर आप चेक से लेना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे डील्स और अच्छे से हो सकते हैं. दिस इज द सजेशन. एंड थर्ड सजेशन, जैसे कि हम लोग ने लैंड हम लोग जब खरीदते हैं तो आई थिंक तो हम लोग ने जब फ्लैट्स हम लोग के जब पहले 20 लाख 25 लाख पहले आज 50 लाख 60 लाख रुपया हुआ है, तो वाई नॉट वी हैव टू रेज अवर ब्रोकरेज अमाउंट ऑल्सो फ्रॉम 2 to 3% of 4%. It's a suggestion for you. So you can think of that. Thank you. अभी हम बात करने जा रहे हैं प्रशांत ठाकुर जी से, जो है पनवेल के एमएलए. हेलो सर, वेलकम टू दिस एग्जीबिशन. बताइए किस तरह का एग्जीबिशन आप देख रहे हैं. MCHI का एग्जीबिशन सही मायने में न्यू वर्ल्ड, हम जिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस इंटेलिजेंट सिटीज़ की बात करता है, उन सिटीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं कि पनवेल या नवी मुंबई के इर्द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर सचमुच में एग्जीक्यूट हो रहे हैं. नए ज़माने के ख्यालात रखने वाले जहाँ पे कस्टमर्स रहेंगे, ऐसे कस्टमर्स को जब आपको अट्रैक्ट करना है तो उसको फैसिलिटीज़ आपको उसी लेवल का देना पड़ेगा. मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे बिल्डर्स डेवलपर्स जो हैं मुंबई या मुंबई के इर्द के एरिया के एट पार फैसिलिटीज़ आज यहाँ पर ऑफ़र कर रहे हैं, वो भी मतलब कंपेटेबल कॉस्ट में दे रहे हैं. बहुत ही अच्छी बात है. सर, जैसे आपने फैसिलिटी की बात की, हम एयरपोर्ट की भी काफ़ी सालों से बात सुनते आ रहे हैं कि कब तक ये पॉसिबल या ये सपना कब तक सच होने वाला है. ये सवाल आपको दोपहर को करना चाहिए. सिडको के माध्यम से एयरपोर्ट हो रहा है और मैं समझता हूँ कि उसमें जो सुविधाएँ थी लोगों के मन में, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग थे, उनके रिहेबिलिटेशन की बात थी. उसके बारे में एक अच्छा अप्रोच सिडको के माध्यम से एमडी या जॉइंट एमडी या उनके सहयोगी ने लिया हुआ है. अब मैं समझता हूँ कि जो रिहेबिलिटेशन का प्लानिंग का स्टेज था, दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड. अभी एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट हो चुका है. पहले वाले कुछ एक्सपीरियंस बहुत अच्छे नहीं थे और उसकी वजह से लोगों का अपोजिशन, अभी अपोजिशन बहुत सारे हद तक दूर हो चुका है. जितने जल्दी ये रिहेबिलिटेशन का काम हो जाएगा और उतनी जल्दी एयरपोर्ट शेपअप हो जाएगा और उतना ही फ़ायदा जो कंजेशन हो रहा है मुंबई में और उसकी वजह से हम सभी लोगों को झेलना पड़ता है, उसमें कुछ बहुत हद तक राहत मिलेगी. अच्छा, हम नवी मुंबई तक कितने आने वाले कुछ समय में किस तरह का डेवलपमेंट देखेंगे? मैं समझता हूँ कि नवी मुंबई की सीमा अब बढ़ने वाली है. जैसे कि हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट की वजह से नैना डिक्लेयर हो चुका है और नैना के माध्यम से न सिर्फ ठाणे डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का बहुत सारा जोन डेवलप हो रहा है. काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप होगा. प्लान अगर डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसका फ़ायदा न सिर्फ आज की पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उसका फ़ायदा होता रहेगा. प्लान सिटी का मतलब न सिर्फ घर है, ना सिर्फ रास्ते हैं, उसी के साथ साथ जो कॉमन एमिनिटीज़, सोशल एमिनिटीज़ जिनकी ज़रूरत आज के समय में है और जिनको देखते हुए लोग कुछ ज़्यादा पैसे देकर भी ऐसी प्लान सिटीज़ में आकर रहना चाहते हैं. गार्डन्स हुए, ग्राउंड्स हुए, अच्छे मार्केट्स हुए, क्लीनलीनेस, वहाँ का हाइजीननेस, हॉस्पिटल्स, बाकी सारी पब्लिक एमिनिटीज़ अगर लोगों को समय पर मिली तो उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो जाएगा. मैं समझता हूँ कि ये देने के लिए एक क्वेश्चन और है, जैसे बिल्डर फर्टिलिटी का एक कॉमन इशू है कि लैंड प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, जिसकी वजह से उनके प्रोजेक्ट या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है और सो द प्रोजेक्ट कॉस्ट हाई. तो ये इसमें कोई राहत मिलेगी इन बिल्डर फर्टिलिटी को, क्योंकि अफोर्डेबल सेगमेंट अभी बहुत डिमांड में है. सिडको एरिया से बाहर जाकर आप अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तब भी अगर आपको प्राइवेट लैंड ओनर से अगर लैंड लेने के बाद आपको लैंड हाई प्राइस में मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कंपटीशन है, डेवलप करने का कंपटीशन है. अभी डेवलप करने का जब कंपटीशन हो, ऐसी सूरत में हम कम कॉस्ट में लैंड मिलने की सोच रख के भी मैं नहीं समझता कि उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा. अब ऐसी सूरत में इतना ही हो सकता है कि वैल्यू फॉर प्राइस, जो प्राइस आपने लैंड के लिए दे दिया, अगर उसका वैल्यू ठीक तरीके से होगा, जो एमिनिटीज़ आप देना चाहते हैं और जो गवर्नमेंट से आप या सिडको से आप चाहते हैं
वो अगर समय पे मिले और लोगों को भी वो पास ऑन कर सके तो मैं समझता हूँ कि पैसा ज़्यादा देने के लिए देने वाले को दुख नहीं होता। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस। वी विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे ठाकुर जी ने अभी हमें बताया कि लैंड प्राइजेस में तो ज़्यादा कुछ हमें देखने नहीं मिलेगा, बट यस नवी मुंबई में डेवलपमेंट बहुत कुछ देखने मिलेगा। सो कम एट MCHI क्रेडाई एग्जीबिशन एंड टू एक्सप्लोर द प्रॉपर्टीज। अभी हमारे साथ है MCHI क्रेडाई प्रॉपर्टी एग्जीबिशन एट नई मुंबई में रजनीश जी, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर रहे थे। रजनीश जी बताइए किस तरह का प्रोजेक्ट और किस तरह का आपने एग्जीबिशन में देखा है? यार मुझे सारे प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे लगे और काफ़ी मतलब स्टॉल का जो ऑर्गेनाइजेशन किया MCHI ने, मैं स्पेशली उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि काफ़ी मतलब लास्ट टाइम जो मैं आया था सेम जगह पे यहाँ पे एग्जीबिशन हो रहा था, बट वो इतनी अच्छे ऑर्गेनाइज वे में नहीं हुआ था। दिस टाइम दिस इज़ मोर ऑर्गेनाइज and I am very happy to see in this MCHI exhibition. Which particular developer projects you have liked so far? See, I have like Goelsa project especially, where for middle class people there is a huge benefit because they are taking only 1% of the processing fee and rest 95% they are giving the guarantee to give the home loan to the end users, to the customers. So I think this is a very good opportunity and it is in Karjat where the facilities are eminent. So I think this is a very good opportunity for all the end users to use this platform. What is one message you would like to give to this builder fraternity so that they can improve or that will make an easy process in buying a building? I am a very small man to give any suggestion, but I would only request all the builders just don't lose hopes and they are doing already a good work. Plus keep on doing good work. Are you going to buy any property today? Yeah, I am going to buy one property. Thank you. Happy shopping at exhibition and we wish you all the best for your day. As Rajnish ji said, there are quite a property display here and he has liked one property, opportunity is going to book as well. So you don't wait at home, come and explore this exhibition. I'm sure you will find your dream home as well. As the journey of MCHI क्रेडाई नवी मुंबई एंड रायगढ़ प्रॉपर्टी एग्जीबिशन ends here. जैसे कि आपने देखा यहाँ बहुत सारे डेवलपर्स ने पार्टिसिपेट किए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे नए नए लोकेशन के बारे में बात हो रही है। देयर इज़ अ न्यू लोकेशन विच इज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड कॉल्ड अपर पनवेल और बहुत सारी पर्सनालिटी ने इस एग्जीबिशन को अपने प्रेजेंस से ग्रेस किया। आई एम श्योर आपको इस एग्जीबिशन में काफ़ी कुछ पता चला होगा एंड यू मस्ट हैव thoroughly enjoyed this show. Please keep watching and stay tuned to Spin TV to get all the information about real estate and their updates. मैं प्रियंका आपसे अलविदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड ऑफ स्पिन शोकेस में नए एग्जीबिशन और नए लोकेशन के साथ. Till then, you take care of yourself. Goodbye and take care.